Hello students, good morning. Today we are going to read the poem One Day I Wrote Her Name. It was written by Edmund Spencer. Edmund Spencer was a very famous poet, one of the prominent literary figure of Elizabethan period. He was born in 1552 in East Smithfield, London, though there was a kind of dispute over his birth year. Some critics or some historiographers say that he was born in 1553. Some claim it to be 1552. He was died in 1599 in London. Again, a controversial kind of death he has died. About his death, some people had, some critics, some historiographers have written this thing, that he died in want of bread, but some have refuted this idea because he used to receive a pension from Queen Elizabeth. So the question that he has died because of lack of bread is nowhere. He was best known for The Fairy Queen, an epic poem which he has written in allegorical manner to praise Queen Elizabeth. He was considered as one of the greatest poets of English language because of his style, because of his mastery over words. And if we talk about his famous works, then it includes the Shepherd's Calendar. It was a pastoral song, and he has written songs about all the 12 months of the year as per the shepherds, as per the pastoral or rural life. Then comes the Fairy Queen. As we have talked, it was an epic poem, it was an allegorical poem to praise Queen Elizabeth. Then comes Amoreti and Epithalamion, his sonnet sequence, in which he has written 89 sonnets, and the present sonnet, One Day I Wrote Her Name, was also taken from this collection, Amoreti. Then he has written a prose piece, A View of the Present State of Ireland. This was a kind of open letter to the public of Ireland. It was about the reformation of Ireland, in which he has addressed the public of Ireland, how he sees Ireland in the future years. And due to his mastery over the words, over the lyrics, Charles Lamb called him the poet's poet, because the quality of poetry which he has produced was very qualitative. Then we let's come to this poem, One Day I Wrote Her Name. This poem is a sonnet. Now, what is a sonnet? Let's talk this thing first. A sonnet is a 14-line poem. The very first thing, very commonest feature of any sonnet is what? That it is a lyrical poem which has 14 lines. लिरिकल मीन्स इसमें लिरिकल क्वालिटी होती है, यानी हम इसको गा सकते हैं. एक ऐसी पोएम होती है सोनेट जिसको हम लिरिकल रूप में होती है, इसको हम गा सकते हैं. एंड इट हैज़ ओनली 14 लाइन्स. दूसरी जो चीज़ होती है किसी भी सोनेट की, सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी, जो स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है उसके अनुसार इसमें 14 लाइन्स होती हैं. इफ यू गो टू सम detailed composition, then sonnet is a single stanza poem of 14 iambic pentameter lines which have a set rhyme scheme. Now we have new words, iambic pentameter lines. Now what are these iambic pentameter lines? दो हम इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे जब हम
ये मीटर, सोनेट और ये सब लिटरेरी टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब भी, लेकिन अभी फॉर योर प्राइमरी knowledge, let me explain it to some introductory level. Pentameter. What is meter? Meter is that structure, that sequence in which the words in a poem are arranged. The lyrical quality of a poem is arranged. Now we have many kind of meters, and the most popular is syllabic meter. Syllabic meter is what that we have a unit of a syllable. एक syllable जो होता है उसमें क्या होता है, एक वोवल जो साउंड होती है ना, उसको हम एक syllable बोलते हैं। और मीटर जो होता है उसमें 2 syllables होते हैं, 2 syllable का एक ग्रुप होता है मीटर में। तो जो आयम्बिक पेंटामीटर है, अगर हम इसकी बात करें तो पेंटामीटर, पेंटा मीन्स 5 है ना, 5 मीटर यानी 5 मीटर्स होते हैं, यानी उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, है ना। ये एक लाइन होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये एक टॉमस ग्रे की फेमस पोएम है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसकी एक लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब हम बात करते हैं आयम्बिक। आयम्बिक जो होता है, आयम्बिक जैसे हम इसको बोल रहे हैं ना, जैसे मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ आयम्बिक, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, आई एम, जब मैंने इसको बोला आई एम, आप बोल के देखिए इसे, तो स्ट्रेस आ रहा है ना। देखो दो वर्ड्स जब हम बोलते हैं किसी भी जो हमारी यहाँ मीटर के सेंस में जो हमारी यूनिट होती है जिसको हम कंसिडर करते हैं, वो वोवल साउंड होती है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए 2 वोवल साउंड है ना, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, है ना, तो एक होता है कुल, एक होता है कूल, अंतर है ना दोनों में। मैंने 2 वर्ड बोले, एक है कूल, एक है कुल, है ना। तो जो कुल बोला इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा, जो साउंड है वो अनस्ट्रेस्ड साउंड है। यहाँ जो वोवल हम यूज कर रहे हैं वो कैसा है, जो स्वर की ध्वनि है वो कैसी, अनस्ट्रेस्ड है। लेकिन कूल जब हम बोल रहे हैं तो जो ध्वनि है वो कैसी है, स्ट्रेस्ड है। तो आयम्बिक, जब मैं इस वर्ड को बोल रहा हूं आयम्बिक, तो क्या हो रहा है, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम जो वर्ड है ये अनस्ट्रेस है, यानी ये जो पहला सिलेबल जो है, पहली वोवल साउंड जो है ना, आई और ए की मिक्स सिंगल सिलेबल जो बन रहा है, तो आई एम का जो सिलेबल है या जो सिलेबल साउंड है वो कैसी है, अनस्ट्रेस्ड है। लेकिन बिक, बिक जो है वो कैसी है, स्ट्रेस्ड साउंड। आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, यानी ये जो लाइन होती है, देखिए कितनी कठिन होती है एक सोनेट को लिखना या एक सोनेट को रीड करना, एक सोनेट की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, यानी एक लाइन जो है वो कैसी लाइन है, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन है, यानी उसमें 5 ग्रुप ऑफ सिलेबल्स हैं, है ना, 5-5 के ग्रुप हैं सिलेबल्स के, वोवल साउंड्स के 5-5 के ग्रुप हैं, और उन ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप में क्या हो रहा है, आयम्बिक साउंड है। आयम्बिक का मतलब पहला जो वर्ड है, पहला जो वोवल है वो अनस्ट्रेस्ड साउंड है, सेकंड वोवल जो है वो स्ट्रेस्ड साउंड है। यानी पूरी जो सोनेट है, पूरा जो सोनेट यानी 14 लाइन है, उन 14 लाइन्स में हर लाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहला जो वर्ड है वो अनस्ट्रेस्ड है, पहली जो वोवल साउंड है वो, और जो सेकंड वोवल साउंड है वो स्ट्रेस्ड है। यानी पूरा जितने भी सोनेट्स लिखे गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन दिस पैटर्न, आयम्बिक पेंटामीटर, यानी 10 सिलेबल्स होंगे, 5 ग्रुप्स होंगे, एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड का, अनस्ट्रेस्ड फर्स्ट होगा एंड देन फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। जैसे द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, है ना। मतलब जो भी लाइन्स होंगी उन हर लाइन में आपको पहला जो सिलेबस होगा, जैसे अब हम जो ये करंट पोएम है ये जब पढ़ेंगे तब भी हम बात करेंगे इसको कि कैसे ये पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है। तो ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर, है ना। आयम्बिक जो है वो मीटर है। आयम्बिक मीटर का मतलब पहला अनस्ट्रेस्ड है, पहली वोवल साउंड, सेकंड वोवल साउंड है जो वो स्ट्रेस्ड है, और दूसरा पेंटामीटर, पेंटा यानी 5
ग्रुप्स हैं ऐसे, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ऐसे 5 ग्रुप हैं पेंटामीटर, है ना। और इनकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम क्या होती है कि जो लास्ट वर्ड होता है, हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो किसी दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता है ना। जैसे अभी जब हम ये पोइम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अब हम बात करें भाई, ये जो सोनेट थे, इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिकली 2 तरह के थे। एक था इटालियन सोनेट और दूसरा था इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट जो होता था, उसमें क्या था कि उसमें एक ऑक्टेव प्लस सिस्टेट होता था, है ना। मतलब 8 लाइन का एक ग्रुप होता था, फिर 6 लाइन का, 8 + 6 14 हो गई ना। तो 8 लाइंस जो होती थी फर्स्ट, जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, उस पार्ट में जो वो थीम थी, जो भी आइडिया था वो प्रेजेंट किया जाता था, एंड इन द लास्ट 6 लाइंस इन द सेस्टेट पार्ट द कंक्लूजन वाज गिवन। It was also called as Petrarchan sonnet. It was also called as Miltonic sonnet due to the use, है ना, इन लोगों ने उनको यूज किया तो इसका ऐसा नामकरण हुआ। देन वी हैव इंग्लिश सोनेट, जिसको कि हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियर जो थे उन्होंने इसको बहुत ही वाइड यूज किया था। दैट्स व्हाई दैट सोनेट इज कॉल्ड एज शेक्सपियरियन सोनेट। इट वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय अर्ल ऑफ सरे। ये जो सोनेट होता है शेक्सपियरियन सोनेट, इसमें क्या होता है 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है लास्ट में। क्वार्ट्रेंस मीन्स 4 लाइंस के 3 ग्रुप होते हैं, 4 3 = 12, और लास्ट में एक कपलेट होता है 2 लाइंस के, यानी 14 लाइंस। ये बहुत ही कठिन फॉर्म होती थी। क्यों होती थी? बिकॉज 3 क्वार्ट्रेंस जो होते थे उनमें आइडिया प्रेजेंट किया जाता था, और लास्ट का कपलेट यानी लास्ट की सिर्फ 2 लाइन में उस आइडिया को, उस विचार को कंक्लूड किया जाता था। अगर हम राइम स्कीम की बात करें, जैसे मैंने कहा था ना, लास्ट के जो वर्ड हैं वो आपस में मिलते हैं, तो जो इटालियन सोनेट होता था उसकी राइम स्कीम होती थी ABBA, यानी पहली जो 8 लाइन थी वो ABBA होती थी, और लास्ट की जो सेस्टेड 6 लाइन थी वो CDC ऐसे राइम्ड होती थी। ये मैं अभी आप जब हम पोएम, हमारी वर्तमान पोएम जो है वन डे आई रोट हर नेम, ये जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये ABBA CDC क्या होता है। इसी तरह जो इंग्लिश सोनेट था उसकी जो राइम स्कीम होती थी वो होती थी कि इसमें 3 क्वार्ट्रेंस जो होते थे उनकी राइम स्कीम होती थी AB CD EF, यानी 4 लाइंस जो थी वो आपस में राइम करती थी, और जो कपलेट था वो सेम राइम्ड होता था GG। अब हम बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसर ने जब अपने सोनेट्स लिखे, क्योंकि ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ये भी एक सोनेट है, तो स्पेंसर ने जब सोनेट्स लिखे तो उसने उस जो शेक्सपियरियन सोनेट था उसमें वेरिएशन किया। क्या वेरिएशन किया उसने? कि उसने राइम स्कीम जो थी उसमें वेरिएशन किया, इसलिए उसके जो सोनेट्स हैं उसको स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। उसकी जो राइम स्कीम थी वो थी ABAB BC CD EE, यानी ABAB पहला जो स्टेंजा, पहली जो 4 लाइन है उसमें क्या था ABAB, लेकिन फिर जो B था वो रन ऑन हो रहा है, यानी आगे जा रहा है BC, फिर C रन ऑन हो रहा है CD और फिर EE, ये कपलेट था। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्तमान सोनेट है उसमें ये राइम स्कीम हमें देखने को मिलेगी ABAB BC CD और EE। So in our next video we will read this poem, and we will also discuss about this rhyme scheme and about this iambic pentameter line. Okay, this is the introduction which we have talked about the author, about what is a sonnet, about Spenserian sonnet. Okay, thank you.